To attend the last class, so once again I am going to say about this slide. लास्ट 8 ईयर का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, जैसे कि 2020 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में 8, 18 में 7। तो इस कोर्स का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो कि 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछा जा सकता है हमेशा ये मतलब ऐसा पैटर्न रहा है कि इतना मार्क्स का पूछा ही जाएगा। और इससे आपको बेनिफिट, जो भी टेक्निकल एग्जामिनेशन है बार कैंड इसरो, उसमें आप जरूर उसको जब भी फॉर्म आए तो उसमें अप्लाई करें एंड उस एग्जाम को आप जरूर लिखें। दैट इज वेरी मतलब बहुत ही बढ़िया। जैसे आप अच्छा एग्जाम यदि लिखते हैं देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर गेट इसरो एंड बार एज वेल, राइट। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि यदि आप 2 से 3 घंटे में किसी भी कोर्स को रिवाइज कर ले रहे हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। घर पे बैठे बैठे 2-3 घंटे में कंप्लीट कोर्स रिवाइज नहीं हो पाता है। सो वी आर ट्राइंग टू कवर वन कोर्स इन 2 or 3 hours. So half of the portion of talk completed last day, and so let me start from where we left, right? So I'm moving to that slide. And today I forgot to carry digital writing pad, so it might be difficult to write something. Yeah, okay. So let me move to the question where we left. I think this has been covered last day. Okay, yeah. So we were solving this problem last day, and what we get, option were not matching with the answer. But I verified the option, and what I found, I opted the wrong option, wrong answer here, right? So correct option will be D. So let me explain once again. So question number 9 is saying that consider the following languages L1 and L2 are given. So which one of the following statement is false? And this question is asked in 2013, and I also told you that 2013 का जो पेपर था that was very difficult, right? उसमें क्या है कि 40 मार्क्स आने के बाद भी 688 रैंक लगा। तो वैसा होगा नहीं शायद, इतना टफ यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो 40 मार्क्स में आपको 2000 के आसपास रैंक लगेगा, 2500 के आसपास रैंक लगेगा। एंड इफ यू वांट गुड आईआईटीज देन ऑफ कोर्स यू हैव टू कम अंडर 500, राइट? सो लेट मी, so I am giving you a few seconds of time to solve this problem. Actually we have already solved this problem last day. Okay, let me join with another device. You can write your answer in comment box, right? So L1 is saying that 0 to the power P, 1 to the power P, 0 to the power R, where P, Q, R is greater than equal to 0, right? So there is no any conditions for P, Q, and R, on just greater than equal to 0, right? But in language 2, what it is saying that P not equal to R. So you have to focus on 0 and occurring before 1 and occurring after 1. So what is the grammar for L2? Are you able to write grammar for L2? This is context-free language because there will be 2 cases, right? Let me write something here. Yeah, okay. Suppose that you have to consider, no. Yeah. There will be 2 cases, right? First case will be P less than R, and another case will be P greater than R. So you can write the grammar for these cases as well. So what you have to focus, number of 0 will be more in this case and for P, and in, sorry,
less than for P and more than for R, and just opposite in this case. So you can write the grammar. So it means that this is a context-free grammar. You can also design PDF for L2. So this is clear that L1 is a regular language and L2 is a context-free language. So options are given here. Option 2 is saying, option A is saying, first option is saying that L2 is context-free language. Yeah, of course, this is context-free language. You can write the grammar. You can also accept such strings using PDA machine. And L1 intersection L2 is context-free language. You know, L1 is regular language and L2 is context-free language. If intersection हम यदि perform करें तो क्या होगा? Context-free language होगा, क्योंकि जितने भी regular languages होते हैं वो context-free language होगा ही होगा. तो context-free language और intersection के अंडर में क्या होता है? Closed होता है. यदि two languages are context-free language and you are doing union or intersection, then the resulting language also will be context-free language. So option A and option B are correct, and let me check for the option C. Complement of L2 is recursive. So what is recursive? Recursive is nothing but type 0 grammar, correct? That is Turing machine. So हमने आपको एक डायग्राम भी बताया था कि यदि ये यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर सपोज दैट आर एंड दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेगुलर लैंग्वेज होगा वो क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होगा. एंड दिस इज रिकर्सिव, मतलब टाइप 0 ग्रामर. तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो रेगुलर होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, वो रिकर्सिव लैंग्वेज तो होगा ही होगा. तो रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए यहाँ पे बोला है कंप्लीमेंट ऑफ L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. सॉरी, ऑप्शन सी, कंप्लीमेंट ऑफ L2 इज रिकर्सिव. तो रिकर्सिव लैंग्वेज का कंप्लीमेंट भी यदि हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज स्टिल recursive language, because the recursive language are closed under complement, union and intersection as well. So option C is also correct, but C, option D, complement of L1 is context free language but not regular. What it mean? You know, L1 is a regular language. If you are complementing language L1, then this will be still रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट के अंडर में ही क्लोज्ड होता है. बट दिस सिचुएशन इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. जैसे ये लैंग्वेज क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है, तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होगा. इसका मतलब L1 भी हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिजल्टिंग लैंग्वेज विल always be context free language. It means that option D is correct. So D is the correct option. So let me move to the next slide. Yeah. Now we will talk about ambiguity in context free grammar, and after that we will be solving a few problems. So how you decide a given grammar is ambiguous grammar, right? So there is two ways. Either you can construct a past tree. If more than one past tree you are getting for particular grammar, then that is definitely ambiguous grammar. And another way, you can find leftmost derivative and rightmost derivative, and there exists more than one LMD or RMD, then that is again ambiguous grammar. So here I have taken one example. A grammar is giving ASBS and BSAS and epsilon also, but string is AB, so you can check for given input string. If you are having more than one LMD or RMD, then this is ambiguous grammar. Many of you are not aware with LMD, RMD, might be. So leftmost derivation and rightmost derivation का meaning मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा. You have to find string AB from the given grammar. If you are replacing leftmost non-terminal, always follow this concept. If you are replacing always leftmost derivation first, after that rightmost non-terminal, then in this way, if you are driving input string AB, then this is called LMD. But in case of RMD, you have to always replace rightmost non-terminal, then आफ्टर लेफ्टमोस्ट, उसके बाद लेफ्ट साइड में जो भी नॉन टर्मिनल होगा उसको. देन इन दिस वे इफ यू आर गेटिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग, देन दैट इज RMD.
सो लेट मी गिव LMD फर्स्ट. सो जैसे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट में जो एस अपियर हुआ है उसको हमने रिप्लेस कर दिया. तो एस को हम या तो रिप्लेस कर सकते हैं सेम ग्रामर से जो यहाँ पे दिया गया है, और दिस वन, और नल, और एप्सिलॉन से. सो वी हैव टू गेट AB, करेक्ट. सो AB हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एस को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एप्सिलॉन से. सो एप्सिलॉन से हमने रिप्लेस किया, सो एप्सिलॉन को कॉन्केटेट करेंगे तो क्या होगा, जो रहेगा वही होगा. जैसे ए एप्सिलॉन बी, कॉन्केटेशन के बाद क्या होगा, AB. अब राइट मोस्ट साइड में हमारे पास another non terminal is S. So once again you can replace S by epsilon. So AB is the string. So this way you can get string using LMD, but in case of RMD क्या हो जाएगा, राइट मोस्ट S को आपको रिप्लेस करना पड़ता. Okay, and another way to check ambiguity using parse tree, that is graphical representation. For same grammar and for same string AB, we can design or we can draw parse tree, right? So S is the starting state. So S can either produce A, S, B, S. So here we have written here. So S will be replaced by epsilon and another S will be replaced by epsilon. So in this way you can design or you can draw parse tree. But if more than one parse tree is possible for particular string, then that is going to be ambiguous. यदि एक से ज्यादा नहीं हो पा रहा तो that grammar will not be ambiguous grammar. So here I have taken another string AB. If you will solve for AB, तो आपके पास एक से ज्यादा पार्स ट्री आएगा, और LMD और RMD भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक से ज्यादा पॉसिबल है. तो मैं ब्रीफली इसको थोड़ा सा फास्ट वे में करना चाहूंगा. जैसे LMD1 हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं LMD1 से. जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, AB स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना था, राइट. तो लेफ्ट मोस्ट एस को हमने क्या किया, रिप्लेस किया एप्सिलॉन से. आपने नो just see here, S is replaced by BSAS, correct. And after that left S is replaced by epsilon, and after that another capital S is replaced by epsilon, and finally rightmost S is replaced by epsilon. So in this way you are getting AB. And another way also exist. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमने लेफ्ट मोस्ट एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, एंड आफ्टर दैट राइट मोस्ट एस को हमने ASBS से रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर दिया गया आप तीन में से किसी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टू डिफरेंट LMD यहाँ पे AB स्ट्रिंग के लिए जनरेट किया गया है. इसका मतलब क्या कि एम्बिगुअस ग्रामर है. आप पार्स ट्री भी डिजाइन कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा पार्स ट्री केस में पॉसिबल है. तो हमने एक गेट प्रॉब्लम लिया है, एंड आई विल गिव यू 30 सेकंड ऑफ टाइम, और इवन मोर देन 30 सेकंड, बिकॉज 30 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में नहीं आता. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सो ग्रामर इज गिवन हियर. S is giving SS, S is also giving small a, small b, S is also giving BA, S is giving epsilon. So first point is given, G is ambiguous. Second is G produces all string with equal number of A and B. G can be accepted by deterministic push down automata. Which one of the following statement is true? 4 options are given. You can try. Aditya has answered option A is correct. G is ambiguous. Any other student? Take your time.
Ankita is saying option B is correct. Okay, so let me check. So first we will check for second point. G produces all string with equal number of A and equal number of B. इसका मतलब क्या है कि जितना A आएगा उतना ही B आएगा, ठीक है. But grammar is S and S is also giving A B, S is also giving B A. यहाँ पे देखिए, क्या हम इसे A B B फाइंड आउट कर सकते हैं? यदि इस टाइप का भी स्ट्रिंग हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी है. तो हम लोग देख पाएंगे कि ऐसा स्ट्रिंग हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस क्या दे रहा है, ए बी, मतलब ए हम एक साथ नहीं ला सकते हैं. सो ऑप्शन 2 सेकंड पॉइंट जो है, जी प्रोड्यूसेस ऑल स्ट्रिंग विथ इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. हाँ, ये जरूर है कि इस टाइप का आप स्ट्रिंग यदि ए बी बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी है, लेकिन ऑल ए आर कमिंग टुगेदर एंड ऑल बी आर कमिंग टुगेदर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी है, बट पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस ग्रामर से आप फाइंड आउट कर पाओगे. जी कैन बी एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा. तो डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसा कि हमने देखा है कि फाइनाइट ऑटोमाटा में, फाइनाइट स्टेट मशीन में, एक स्टेट से ट्रांजिशन किसी भी इनपुट के लिए किसी पार्टिकुलर स्टेट पे होता है. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है हमारा डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा के लिए भी. तो आप यदि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए आप जनरेट कर पाते हो, पीडीए बना पा रहे हो, इसका मतलब एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो ऑफ कोर्स यू विल डिजाइन डीपीडीए. बट किसी भी ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है क्या कि 1 and 3, या सो बी मे बी करेक्ट. Which one of the following statement is true? This is context free grammar, right? तो इसके लिए हम लोग पीडीए बना सकते हैं, बट क्या डिटरमिनिस्टिक पीडीए पॉसिबल है? एनीवन? डिटरमिनिस्टिक पीडीए पॉसिबल है क्या? Nishika is also saying option A is correct. क्या बता सकते हैं? पीडीए तो हमने बनाया है कि यदि पीडीए पॉसिबल है, देन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए पीडीए बनाया जा सकता है. बट डीपीडीए क्या बनाया जा सकता है क्या? दिस इज द क्वेश्चन. यदि डीपीडीए भी पॉसिबल है गिवन ग्रामर के लिए, देन ऑप्शन 3 विल बी ऑल्सो करेक्ट. यदि पॉसिबल नहीं है, देन ऑप्शन 3 जो है 3 पॉइंट नंबर 3, दिस इज नॉट गोइंग टू बी correct. So you can check. So I am directly moving to the answer part. So option B, G produces all string with equal A, sorry, yeah, 1 and 3. G is ambiguous and G can be accepted by DPDA. तो आप इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए आप चेक कर सकते हैं कि डीपीडीए बनेगा कि नहीं बनेगा. तो जब पीडीए बना सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, तो जितना भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा तो उसका डीपीडीए भी बना सकते हैं. तो आप इसको खुद से भी ट्राई करेंगे. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट इस क्वेश्चन से एक पॉइंट क्लियर हुआ है यहाँ पे कि ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते गेट में, राइट? आप यदि ध्यान से देखें इसको तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. बट ऐसा नहीं, टाइम बहुत है आपके पास, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है. then of course you are going to score good rank in GATE 2021. ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे एंड वहां पे भी देखें कुछ और भी कॉन्सेप्ट के साथ. चलो, हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस दिए गए हैं, उसके लिए आपको ग्रामर पूछ देगा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस टाइप का लैंग्वेज के लिए किस टाइप का ग्रामर हम लोग लिख पाएंगे. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. जैसे L1 क्या है यहाँ पे, A to the power n, B to the power n, and you all know this is not a regular grammar, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ A, इक्वल नंबर ऑफ B है. दिस इज नॉट अ रेगुलर ग्रामर. व्हाई? बिकॉज
फाइनाइट स्टेट मशीन हम नहीं बना सकते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन में मेमोरी नहीं होती है, तो मेमोरी नहीं होगा तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट इट विल काउंट इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी, करेक्ट? मतलब ऑल ए आर कमिंग बिफोर ऑल बी. बट दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट? तो आप इजिली ग्रामर इसके लिए लिख सकते हैं. सो एस इज गिविंग ए कैपिटल एस स्मॉल बी एंड यहाँ पे n ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, सो एप्सिलॉन विल बी देयर. यदि ग्रेटर एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता तो क्या लेना पड़ता? s विल बी ए बी, राइट? टर्मिनेट विथ ए स्मॉल बी. सो आप डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए भी चेक कर सकते हैं. तो ग्रामर लिखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप थोड़ा प्रैक्टिस यदि कर लें तो आप डिफिकल्ट लैंग्वेज के लिए आप ग्रामर लिख सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज गिवन. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर. Okay, another language is given, right? L2 is equal to a to the power n plus 3 b to the power n. तो इसके लिए भी आप ग्रामर लिख सकते हैं. एंड हाँ, एक से ज्यादा ग्रामर भी पॉसिबल है किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए. तो गेट विल ऑलवेज आस्क सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे स्टूडेंट क्या होते हैं, ज्यादा गलती करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा गेट. जैसे इस ग्रामर के लिए लैंग्वेज के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि एक से ज्यादा ग्रामर लिखा गया है, जैसे G1, G2, G3, ऑल 3 आर करेक्ट ग्रामर. तो ऑप्शंस में तीनों ग्रामर दिया रहेगा, एक और ग्रामर दे देगा 4, उसमें से पूछेगा कि विच वन इज फॉल्स. तो ये टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस सही होंगे. लेट मी गिव अनदर लैंग्वेज. L3 एंड L4 यहाँ पे देखें. तो इसके लिए भी आप ग्रामर खुद से प्रैक्टिस करें, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. तो इस टाइप के लैंग्वेज के लिए भी ग्रामर पॉसिबल है. यदि आप ग्रामर इजिली लिख पा रहे हो, कॉन्टेक्स्ट ग्रामर, देन ऑफ कोर्स दैट लैंग्वेज आल्सो विल बी एक्सेप्टेड बाय पीडीएफ मशीन. हाँ, इस टाइप का प्रॉब्लम आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी W वेयर W इज द पार्ट ऑफ A एंड B, तो क्या ये जो लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो W हम लोग पहले ले रहे हैं उसी का फिर वंस अगेन यू आर टेकिंग द सेम स्ट्रिंग. तो इस टाइप के जब भी ग्रामर आपके पास और लैंग्वेज रहे, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि रेगुलर लैंग्वेज तो नहीं होगा, रेगुलर लैंग्वेज कभी भी नहीं होगा. जब भी आपको इनफाइनाइट की केसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे W के बारे में आपको पता नहीं है कि फर्स्ट पार्ट इज W, सेकंड पार्ट इज W, यदि बीच में कुछ आपके पास ऑप्शन दिया जाता है कि नहीं, वहां पे कुछ एक सिंबल होता, मान लो कि कोई भी कैरेक्टर होता, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाते कि नहीं ये क्या होगा, मिडिल पॉइंट है कि उसके पहले W है उसके बाद भी W है, तो उस सिचुएशन में हम सोच पाएंगे. बट स्टिल इन दैट केस रेगुलर ग्रामर पॉसिबल नहीं है. तो हमेशा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, तो आपको हमेशा घुमा घुमा करके पूछा जाएगा गेट द्वारा. तो हमेशा ध्यान देंगे कि इस टाइप के जब भी लैंग्वेज पूछा है तो रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा. एक और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि इस टाइप के भी पूछे जाते हैं. सपोज दैट a to the power p, where p is prime number, right? कोई भी लैंग्वेज दिया गया है a to the power p, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है. तो क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है? Is this regular language? I am going to give one very important point. That is the reason I asked this question. Anybody? Okay. Ankita is saying not regular grammar. Very good. Very good. ये a to the power p, ये क्या है, p is prime number. तो क्या है कि p के बारे में पता नहीं है कि इसका क्या रेंज होगा, right? So this is all about infinite. But suppose that यहाँ पे कुछ मेंशन कर दे कि p will be less than a huge number 999 like this, right? एक बहुत ही बड़ा नंबर यहाँ पे लिया गया कि p इससे छोटा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज होगा. जब भी ऐसा प्रॉब्लम पूछा जाए, जैसे a to the power n एंड b to the power n के लिए भी n को बोलेगा कि नहीं इससे हम यदि लेस कर दें, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होगा तो रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट इसको बोलेंगे. दिस इज काउंटेबल, राइट? तो जब भी काउंटेबल है इसका मतलब क्या है, हम लोग उतना स्टेट्स इंसर्ट कर सकते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन बनाने के लिए.
तो पॉसिबल है। लेकिन जब भी कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हो पी और एन के लिए, तो हमेशा ध्यान देंगे कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा, राइट। चलो एक और हम यहाँ पे जैसे इस पार्ट की यदि बात करें तो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, साथ में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी ये नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडिल पार्ट आपको पता नहीं है डब्ल्यू क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट में भी डब्ल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करें। एक और हम प्रॉब्लम यहाँ पे लिया उसको हम देखें, डब्ल्यू डब्ल्यू टू द पावर आर। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्ट इज डब्ल्यू एंड अनदर पार्ट इज रिवर्स ऑफ द सेम स्ट्रिंग। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब इस टाइप का हम जो भी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो क्या होगा, पैलिंड्रोम जनरेट होगा और इवन लेंथ का पैलिंड्रोम जनरेट होगा। तो यदि आप इसके लिए पीडीए डिजाइन कर लेते हो तो आप बोल पाओगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, अदरवाइज नो। सो लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आई वांट टू फोकस मोर ऑन द गेट प्रॉब्लम। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस दिया गया है, L1, L2, L3। विच ऑफ these languages are not context free? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम गेट में पूछे गए। 2006 का प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो आप इसको आंसर करें फटाफट। Anyone? जुनैद आंसर कीजिए। निशिका? Okay, let me give a small hint, right? L1 is equal to 0 to the power n plus m, 1 to the power n, 0 to the power m, where n and m greater and equal to 0। इस टाइप के जब भी लैंग्वेज दिया हो तो आप डायरेक्ट पीडीए बनाने का कोशिश करो। यदि पीडीए बना पाते हो तो इसका मतलब है कि गिवन ग्रामर विल बी कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो पीडीए कैसे डिजाइन करना है, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप यदि प्रैक्टिस किया तो आपको बिल्कुल ही पता होगा, लेकिन चलो इसको मैं यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं। या सपोज दैट L1 में क्या है, 0 टू द पावर n प्लस m। अब ध्यान दें कि यहाँ जो पावर है n एंड m, n प्लस m, so we know we have a stack in case of PDA, मतलब इनफाइनाइट मेमोरी इसमें होता है। अब सारे जीरो को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक में। तो कितना जीरो है, n प्लस m है। इनिशियली स्टैक हमारा एम्प्टी होता है, तो n का वैल्यू मान लो 5, m का वैल्यू 10, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी वैल्यू। तो सारे जीरो को हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। एंड आफ्टर दैट 1 will be coming, then if you are scanning 1, then start popping from the stack। तो कितना 1 आएगा, n1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि n number of zeros are going to be popped, and after that you are having m number of zeros। और हमारे पास स्टैक में कितना जीरोस बचा है, m zeros। तो m zeros और भी आना है, तो जैसे जैसे हम लोग कैरेक्टर को स्कैन करेंगे तो सारे जीरोस के लिए जो भी कमिंग जीरोस है जिसको स्कैन करने जा रहे हैं उसके लिए हम लोग पॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि m जीरोस रिमेनिंग है एंड m जीरो हमारा स्टैक में स्टोर है। तो सारे जीरो के लिए सारे जीरो को हम लोग फिर से क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि स्टैक का जो पहले कंडीशन था, जो एम्प्टी स्टैक था, अभी भी क्या है, एम्प्टी स्टैक है। यदि इस टाइप का आप लॉजिक दे सकते हो किसी भी ग्रामर के लिए, देन दिस विल बी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, मतलब पीडीए हम इसके लिए बना सकते हैं। तो L1 इज डेफिनेटली पीडीए। Sweta Viskarma Ankita is saying that option B is correct, and Nisika is saying that option A or maybe option C. That is the reason I asked you कि आप हमें ये भी क्लियर करें कि आपको यदि
थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ज्यादा दिक्कत है, तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब क्या है, कोई आंसर आते आते हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों का क्या तैयारी है। सर कैन यू रिपीट प्लीज दिस एक्सप्लेनेशन। ओके चलो ठीक है। देखो क्या है, हम लोग का पीडीए हमेशा कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे ही गेट में। तो मान लो कि L1 जो हमारा लैंग्वेज दिया गया है, यहाँ पे हम n एंड m का वैल्यू कुछ ले लिए, ठीक है। n का वैल्यू मान लो कि हम 2 लिए, क्या लिया 2 लिया, और m का वैल्यू हमने 3 लिया। तो इसका मतलब क्या है 3 0, एक बार फिर से लेना पड़ेगा। आई एम हैविंग लिटिल बिट डिफिकल्टी टू राइट। तो n का वैल्यू हमारा 2 है, इसका मतलब 1 क्या होगा 2 होगा, एंड 0 का वैल्यू हमने फिर m का वैल्यू क्या लिया 3, इसका मतलब क्या है कि फिर से 3 0 यहाँ पे आएगा। चलो ठीक है। अब पीडीए हमें डिजाइन करना है, तो पीडीए हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे इसके लिए। सपोज दैट ये हमारा एम्प्टी स्टैक है, दिस इज एम्प्टी स्टैक। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज 0, so always start scanning from left to right. So first character is 0. So what you have to do, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में जो है n प्लस m जीरोज है, एंड उसके बाद n1 एंड m0 है। तो सारे n प्लस m0 को हम लोग स्टैक में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, मतलब पुश करेंगे। तो 0 यहाँ पे आया, फिर से उसके बाद 0 आएगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट स्टैक। सो ऑल 5 0 विल बी स्टोर्ड इन द स्टैक, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने इस पोर्शन तक सारा कैरेक्टर को स्कैन कर लिया है। अब क्या है, अनदर 1 इज कमिंग। तो यहाँ पे मशीन देखो, यही इसीलिए मैं बोला था कि कैसे आपको पता चलेगा कि किस कैरेक्टर तक आपको स्कैन करना है, मतलब पुश करना है स्टैक में। सो यू आर सीइंग हियर 1 इज कमिंग। तो इस पोजीशन पे आप मशीन ये बता सकता है कि न्यू कैरेक्टर इज कमिंग, राइट। सो एट दिस पॉइंट यू कैन स्टार्ट पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इनटू द स्टैक। तो जैसे ही 1 आया तो फर्स्ट 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को पॉप कर देंगे। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये 0। तो अनदर 1 इज कमिंग, तो नेक्स्ट 1 के लिए भी क्या करेंगे, पॉप करेंगे। उसके बाद क्या है 3 0, तो 3 0 फिर से 0 आया, तो टॉप ऑफ द स्टैक, तो फिर से पॉप किया हमने, एंड अनदर 0 हियर। तो उसके बाद फिर से हम इसको पॉप करेंगे, फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं 0, तो वंस अगेन यू हैव टू पॉप। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वंस अगेन स्टैक इज एम्प्टी, जैसा कि पहले हमने लिया था एम्प्टी स्टैक। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि n प्लस m0 को हम लोग इजिली पॉप कर सकते हैं n1 एंड m0 से, करेक्ट है। तो जब इस तरह का आप लॉजिक दे पा रहे हो, इसका मतलब है कि पीडीए हम लोग इजिली डिजाइन कर सकते हैं और इसका ग्रामर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। जैसे हम एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा कि 0 टू द पावर n, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, 1 टू द पावर n एंड 2 टू द पावर n। यहाँ पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ 0 1 एंड 2। तो जैसा कि हमने चेक किया है कि 0 टू द पावर n 1 टू द पावर n रेगुलर लैंग्वेज नहीं होता है, उसी तरह से 0 टू द पावर n 1 टू द पावर n 2 टू द पावर n कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होता है। क्योंकि आप जब कोशिश करोगे स्टैक के थ्रू पीडीए डिजाइन करने का, फिर कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जरूर है, मतलब जैसा कि आपको मैंने बताया है कि रेगुलर लैंग्वेज, देन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, एंड आफ्टर दैट रिकर्सिव, मतलब ट्यूरिंग मशीन। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जरूर है, और 2 स्टैक के साथ इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। यदि प्रॉब्लम ऐसा पूछे कि इफ यू आर हैव आपको 2 स्टैक यूज करना है, देन इन दैट सिचुएशन दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय पीडीए मशीन। तो अभी आपको क्या याद रखना है फिलहाल कि ऐसा जब भी ग्रामर पूछा जाए तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगा। तो ऑप्शन L1 जो है हमें समझ में आ गया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। यदि हम L2 की बात करें, 0 टू द पावर n प्लस m, 1 टू द पावर n प्लस m एंड 0 टू द पावर m, तो यहाँ पे आप लॉजिक क्या दोगे,
यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना जीरो है, n प्लस m है, तो n एंड m का कुछ वैल्यू होगा। उसके बाद 1 भी कितना है, n प्लस m है, तो सारे जीरो को आप स्टैक में स्टोर करेंगे एंड जैसे ही सारे 1 आएगा उसके लिए सारे जीरो को पॉप करेंगे, तो स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया। लेकिन वंस अगेन 0 टू द पावर m, अभी बहुत सारे जीरो बचा है, तो उस जीरो को आप कैसे करोगे, देयर इज नो वे, राइट। तो इसके लिए पीडीएफ बनाना इम्पॉसिबल है। सो दिस इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री। एंड यदि हम बात करें L3 का, तो L3 क्या है, 0 टू द पावर n प्लस m, 1 टू द पावर n प्लस m एंड 0 टू द पावर m प्लस n। तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन यहाँ पे बताया आपको कि इस टाइप का प्रॉब्लम 0 टू द पावर n, 1 टू द पावर n, 2 टू द पावर m, तो सेम प्रॉब्लम ये दिया गया है। देखो गेट हमेशा मैं क्या बोला, ये कंफ्यूज करेगा आपको, एंड खास तौर पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो सेम लैंग्वेज को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। क्या किया गेट ने, 0 टू पावर, ये भी क्या है 0 टू पावर p, 1 टू पावर p, 0 टू पावर p, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया। तो वंस अगेन ये क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है। तो L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। अब ऑप्शन हम लोग देखें यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट ये पूछ रहा है कि नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो L3 ओनली, तो L3 तो होगा ही नहीं। अभी आपको ने बताया कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। L1 एंड L2 ओनली, नो, क्योंकि L2 के लिए हमने देख चुका है कि इसके लिए भी नहीं बना पाएंगे पीडीएफ। एंड ऑप्शन डी इज L2 एंड L3, तो नहीं, फिर से L3 आ गया और L2 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन, किसी लोगों ने आंसर किया है क्या, नहीं, ऑप्शन डी, या, सो L2 एंड L3 आर नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, करेक्ट। ये नोट पूछा है, नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, सो L2 एंड L3 नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Okay, another kind of problem will be asked in GATE examination. Context free grammar दिया रहेगा and they will ask for normal form of that grammar. So there are two ways to convert any context free grammar into normal form. So that is nothing but Chomsky normal form and another is Gray-Beck normal form. तो बस मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इसका क्या पैटर्न होता है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो यदि हम बात करें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की, तो कोई भी ग्रामर को आप यदि इस तरीके से कन्वर्ट कर पाते हो, A is producing B, C and A is producing A, where A, B, C is नॉन टर्मिनल एंड स्मॉल a is टर्मिनल। इसका मतलब क्या है कि हमेशा याद रखना कि कोई भी ग्रामर को यदि A is giving टू नॉन टर्मिनल B and C, कुछ भी नाम हो सकता है, S is giving S1, S2 and S is giving a single terminal, तो इस तरीके से आप यदि कन्वर्ट कर पाते हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो बहुत ही आसान होता है, किसी भी ग्रामर को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि एक हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है कि S is A, S, B and AB, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इक्वल नंबर ऑफ A एंड इक्वल नंबर ऑफ B, A टू द पावर n एंड B टू द पावर n। अब इसे आपको CNF में कन्वर्ट करना है, दिस इज द वे यू कैन कन्वर्ट। हमने क्या किया कि स्मॉल a एंड स्मॉल b को हमने कैपिटल A एंड कैपिटल B से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट है। सो स्मॉल a विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल A एंड स्मॉल b रिप्लेस्ड बाय कैपिटल B, तो A विल बी टर्मिनेट विद स्मॉल a, B विल टर्मिनेट विद स्मॉल b। तो अभी भी क्या है, ये CNF में नहीं है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपको ने बताया है कि हमेशा याद रखें कि राइट साइड में दो नॉन टर्मिनल होगा तो चलेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 नॉन टर्मिनल है तो उसमें से 2 को हम लोग एक नॉन टर्मिनल कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने x यहाँ पे जूम कर दिया, AS इज नथिंग बट x एंड B विल बी एज इट इज, एंड सेकंड पार्ट में कोई दिक्कत नहीं था, सो दिस विल बी एज इट इज। सो x इज गिविंग AS एंड A एंड B को आपको हमने बता रखा, तो ये क्या हो गया, CNF में हो गया। अनदर एग्जांपल इज गिवन, आप इसको ट्राई करें। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसी भी ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से यदि आपको CNF में कन्वर्ट करना चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, तो कितना स्टेप लगेगा। तो n लेंथ स्ट्रिंग के लिए आपको हमेशा याद रखना 2n-1 विल बी करेक्ट आंसर, राइट। जब भी n लेंथ की स्ट्रिंग पूरी तो कितना स्टेप लगेगा, 2n-1, हमेशा याद रखेंगे, पूछा गया गेट में। आई एम स्किपिंग दिस, राइट। हाँ, अनदर इज ग्रे-बेक नॉर्मल फॉर्म, GNF। तो GNF हम लोग कैसे समझेंगे, जब भी किसी भी ग्रामर को हम लोग यदि इस तरीके से कन्वर्ट करें और इस पैटर्न में यदि होगा, देन दैट ग्रामर विल बी अंडर GNF। सो A is giving a small a capital X
एंड x इज द एलिमेंट ऑफ नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे याद रखें कि x जो ना बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे n स्टार लिखा गया है, लेकिन CNF में क्या था, ओनली 2 नॉन टर्मिनल आपको लेना है। बट इन केस ऑफ GNF मोर देन 2 हो सकता है, चलेगा, एक हो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। Correct. That is the reason I have written here a grammar A is giving small a capital X and capital X is the element of n star, मतलब null भी हो सकता है। करेक्ट। तो इस फॉर्मेट में यदि आपके पास ग्रामर है और आप यदि if you are able to convert any context free grammar in this format, then that grammar will be in the form of GNF. And a few examples are given here. तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात यदि करें तो ये क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड बी इज गिविंग स्मॉल ए कैपिटल बी बी। तो इसका मतलब ये GNF में है। लेकिन हम यहाँ पे यदि बात करें एस इज गिविंग ए बी, तो यहाँ पे क्या है, 2 नॉन टर्मिनल है लेकिन टर्मिनल नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ GNF। करेक्ट। सो दिस इज द वेरी सिंपल वे टू रिमेम्बर। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब पुश डाउन ऑटोमाटा यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन कर हमने किया है प्रॉब्लम के थ्रू। तो PDA इज नथिंग बट अ फाइनाइट स्टेट मशीन विथ एक्स्ट्रा मेमोरी। और एक्स्ट्रा मेमोरी की हम बात कर रहे हैं स्टैक। तो स्टैक यदि हम मिला दे फाइनाइट स्टेट मशीन में, देन उसका बिहेवियर PDA की तरह हो जाएगा। करेक्ट। इफ द साइज ऑफ स्टैक इज लिमिटेड देन इट इज फाइनाइट स्टेट मशीन, क्योंकि फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या है, मेमोरी की प्रॉब्लम होती है। यदि हम फाइनाइट की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि a to the power p इज प्राइम नंबर इज रेगुलर लैंग्वेज इफ एंड ओनली इफ p विल बी फाइनाइट। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे a to the power n एंड b to the power n के लिए भी बोला है कि इसके लिए हम लोग स्टैक बना सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे देंगे, स्टैक कैसे हम लोग PDA कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। बट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ PDA इज दिस कैन बी डिफाइंड बाय 7 टपल्स, राइट। 5 टपल्स आपको पता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टपल की बात हम कर रहे हैं टाउ की, राइट, एंड एक टॉप ऑफ द स्टैक Z0 की। तो क्यू के बारे में आपको पता है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होता है एंड दिस इज इनपुट सेट ऑफ सिंबल्स एंड दिस इज टाउ सिंबल। जो भी हम स्टैक में पुश एंड पॉप कर रहे हैं वो सारा क्या कहलाता है, टाउ सिंबल कहलाता है। एंड Z0 क्या है हमारा, टॉप ऑफ द स्टैक। तो दैट इज ऑल्सो is the part of stack, so that is also the element of tau। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, गेट में हो सकता है कि एक नंबर में पूछ दें। एंड यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट हमने नोट किया है कि कैसे हम लोग, किसका क्या मीनिंग होता है, कि कब हम लोग पुश कर रहे हैं, कब पॉप कर रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्ट एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग a to the power n एंड b to the power n के लिए कोशिश करेंगे PDA डिजाइन करने का। तो इनिशियल स्टैक हमारा क्या है, ऐसा, जो कि Z0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि टॉप ऑफ द स्टैक एंड दैट इज एम्प्टी। अब हमने a to the power n एंड b to the power n के लिए हमें डिजाइन करना है PDA मशीन। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ n इक्वल नंबर ऑफ b होगा। तो चलो हम n का वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं, सपोज दैट 2a एंड 2b। तो 2a को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही a को स्कैन किया, फर्स्ट a को, तो आप स्टैक में कुछ नया सिंबल भी पुश कर सकते हो। बस उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमने कैपिटल ए यहाँ पे पुश किया, इसका मतलब कैपिटल ए इज फॉर स्मॉल ए एंड वंस अगेन कैपिटल ए को पुश किया गया, इसका मतलब कैपिटल ए इज फॉर स्मॉल ए, मतलब स्मॉल ए के लिए। तो एक कैपिटल ए एंड Z0 क्या है, टाउ है। मतलब जो भी स्टैक में सिंबल आप यूज कर रहे हो दैट इज टाउ एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या है, इनपुट सिंबल सिग्मा है। करेक्ट। आप इनपुट सिंबल जो सिंबल लिखा गया है स्मॉल में वो भी आप स्टैक में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि क्या सिंबल लेना चाहोगे। तो आप यदि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से आप स्टैक को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ऑल्सो भी टाउ। करेक्ट। तो हम 2a को स्कैन करने के बाद क्या करेंगे, स्टैक में हमने पुश कर दिया है। अब एक जैसे अब हम हमारा नया कैरेक्टर है b, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो 2b इज कमिंग, सो टॉप 2a विल बी पॉप। अब वंस अगेन Z0 हमारा टॉप ऑफ द स्टैक हुआ। तो जो इनिशियल फेज में था वही फाइनल फेज में भी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा PDA मशीन है फॉर गिवन लैंग्वेज a to the power n b to the power n। इसके लिए हम लोग स्टेट डायग्राम भी यहाँ पे देखेंगे कि कैसे स्टेट डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। चलो देखो, बहुत ही सिंपल है। हमने इनिशियल स्टेट क्यों नॉट लिया, अब करना क्या है, सारे a को
रीड करना है और सारे ए को रीड करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि स्टैक जो है एम्प्टी है क्या। यदि एम्प्टी इसका मतलब टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, जेड नॉट होगा। यदि कुछ सिंबल्स इसमें पुश कर दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि टॉप ऑफ द स्टैक इज नॉट जेड नॉट। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका मीनिंग समझिएगा कैसे हम लोग पीडीए डिजाइन करते हैं। आई विल कंप्लीट दिस पार्ट इन 1 मिनट। यू आर स्कैनिंग कैरेक्टर स्मॉल ए and if top of the stack is z naught then you are pushing a new character capital A। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ए जैसे हम रीड करेंगे उसके लिए कैपिटल ए स्टैक में पुश कर देंगे। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे जो लिखा गया है जेड नॉट, ये सिर्फ एक बार ही आएगा क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या हो चुका है, कैपिटल ए हो चुका है। तो इसके लिए हम ट्रांजिशन यहाँ पे फिर से चेंज करेंगे, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि और भी ए आएगा। करेक्ट? Am I audible? Yes, sir. Okay. So another A is coming here. यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, another A is coming। इसका मतलब क्या है कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, कैपिटल ए होगा। तो हमने यहाँ पे 2A लिखा है, इसका मतलब एक पहले का जो टॉप था और अब जो नया हमने टॉप ऑफ द स्टैक किया है ये। अब इसके बाद जो सारा एक हम लोग इसी स्टेट पे स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही बी आएगा, बी के लिए हम क्या स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक क्या उसको दिखना चाहिए, ऑलवेज कैपिटल ए। अब हमेशा यदि कैपिटल ए इसको दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे। तो ये जो सिंबल दिया गया है एप्सिलॉन, इसका मतलब है कि हम पॉप कर रहे हैं स्टैक से। तो कैपिटल ए पॉप हो चुका है, तो बहुत सारे बी आ सकता है। तो बहुत सारे बी आएगा तो उसके लिए हम सारा स्टैक का जो भी एलिमेंट हो वो पॉप करेंगे। अब कैसे समझेंगे कि हमारा सेम नंबर ऑफ ए एंड सेम नंबर ऑफ बी से इक्वलाइज हो चुका है। यदि सारे बी के लिए हम लोग सारे ए को पॉप कर दिए और फाइनली बी हैव जेड नॉट एज अ टॉप ऑफ द स्टैक। तो लास्ट में हम लोग कुछ सिंबल यहाँ पे रखेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि दैट इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो सपोज दैट डॉलर इज द सिंबल, आप कुछ भी डॉलर यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही डॉलर आया आपको पता चल गया कि जेड नॉट हमारा क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक। अब जेड नॉट यहाँ भी जेड नॉट है, इसका मतलब क्या है कि आप स्टैक में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, इस तरह कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब फाइनली यू आर मूविंग टू द फाइनल स्टेट। सो दिस इज द वे टू डिजाइन पीडीए मशीन। यू कैन डिजाइन फॉर another problem as well. So this is the another example, right? You can design yourself. And साथ में ये भी बोलना चाहूंगा कि एक से ज्यादा लॉजिक हो सकता है पीडीए डिजाइन करने के लिए। तो कोई यदि बोले कि एक ही होगा क्या, तो नहीं, एक से ज्यादा हो सकता है। दैट वाज माय लॉजिक, और किसी और का भी लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जिसके लिए आप पीडीए मशीन डिजाइन करके देख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें 6 का, पीडीए 6, तो इसमें क्या करेंगे, a टू द पावर n है, b टू द पावर n प्लस m एंड c टू द पावर m है। इसका मतलब क्या है कि सारे a को हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। अब जैसे ही b आएगा तो सारे स्टैक में जो भी सिंबल था उसको पॉप कर देंगे, राइट। अब उसके बाद क्या बचेगा, b टू द पावर m, क्योंकि b टू द पावर n के लिए हमारा काम तो हो गया। अब देख रहे हैं b टू द पावर m एंड c टू द पावर m, तो b टू द पावर m को क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे एंड c टू द पावर m जब नया c आएगा तो उसके लिए हम लोग पॉप कर देंगे। इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर। तो हम पावर के टर्म में यदि हम बात करते हैं तो आपको हमने बताया है कि डीएफए एंड एनएफए इज इक्वल इन पावर। हाँ, प्रोसेसिंग टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एनएफए जो है पैरेलली सर्च करता है, सो आउट ऑफ वन टाइम में वो फाइंड आउट कर सकता है। तो डीएफए एंड एनएफए पावर में सेम होता है, सो ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। ऑप्शन बी इज डीपीडी एंड एनपीडी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर करें। लेट मी चेक, आप आंसर करें इसका। This is very simple problem. If you know the concept, then you can easily write the correct answer. Nishika is saying option B. Okay. तो इसका मतलब क्या है कि डीपीडीए एंड एनपीडीए। वेरी गुड। हम ऑप्शन सी को पहले देखें यहाँ पे।
डिटर्मिनिस्टिक सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन में भी क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, वहां पे भी क्या है मल्टीपल टेप के साथ भी होता है, मल्टीपल टेप ट्यूरिंग मशीन। तो सारे टाइप की जो ट्यूरिंग मशीन है ना, वो एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब पावर के रूप में फिर से हम बात करें तो जैसे कि फाइनाइट स्टेट मशीन में होता है, दोनों इक्वल होता है, उस तरह से ट्यूरिंग मशीन में भी इक्वल होता है। जैसे ऑप्शन डी देखें, सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन एंड मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, तो ये भी क्या होगा, पावर में सेम होगा। लेकिन बात आती है डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की, तो वहां पे दिक्कत है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए जो है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है डीपीडीए से, क्योंकि हम जैसे एग्जांपल एक दिए थे a टू द पावर n, b टू द पावर n एंड c टू द पावर n, तो उसके लिए डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बना सकते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए बना सकते हैं। तो वो क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। तो हमेशा याद रखें कि इस सिचुएशन में नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए machine will always be more powerful than DPDA. So option B will be correct. Now, last section I am going to cover in theory of computation, that is Turing machine. तो Turing machine में भी एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि जैसा कि आपने देखा है स्टैक फाइनाइट स्टेट मशीन में एंड पीडीए मशीन में कि बहुत सारे सिंबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं, और मेमोरी भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट मेमोरी है ट्यूरिंग मशीन में, लेकिन यहाँ पे जो स्कैनिंग का पैटर्न है वो लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है एंड राइट टू लेफ्ट भी आ सकता है, जबकि पीडीए में ऐसा पॉसिबल नहीं था। इफ यू आर स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आप वही काम कर पाओगे, आप वापस राइट टू लेफ्ट नहीं आ पाओगे। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर क्या दिया जा रहा है कि आप लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट भी आ रहे हो। तो यहाँ पे हमने बी फॉर ब्लैंक सिंबल, मतलब इनफाइनाइट टेप है, यहाँ पे हमने सारे कैरेक्टर को ए पी एंड ए को स्टोर किया है, और बाकी हमने कैपिटल बी लिखा है, इसका मतलब क्या ब्लैंक सिंबल है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे भी कैरेक्टर को स्टोर किए जा सकते हैं। सो रीड राइट हेड विल ऑलवेज स्कैन योर फर्स्ट कैरेक्टर एंड इट विल मूव टू द राइट डायरेक्शन, एंड इस तरीके से जहां तक जाना होगा, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद यहाँ से फिर से वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ सकता है। तो ट्रांजिशन मैपिंग इसके लिए क्या होगा, if you are on a particular state queue and you are reading some input symbol, then it will move to the particular state queue and this is tau symbol, right? मतलब आप जो स्कैन कर रहे हो उसके लिए आप कुछ यदि लिख सकते हो। तो इसमें एक और फैसिलिटी होती है कि ट्यूरिंग मशीन में कि you can read the symbol, you can write the symbol। तो एक को हम यदि किसी दूसरे सिंबल से राइट करने की कोशिश करें, that is possible। जैसा कि हम लोग राइट कर रहे थे एक को कैपिटल ए से पीडीए में, उसी तरह से ट्यूरिंग मशीन में पॉसिबल है। सो दैट इज नथिंग बट टाउ एंड एल कॉमा आर डिनोट मूवमेंट इज आइदर इन लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। तो बी क्या है, ब्लैंक सिंबल क्यूएफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट, बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखें इस प्रॉब्लम को कि ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन के लिए ट्यूरिंग मशीन कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है। पहले इसका लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 3A एंड 3B, एंड स्टार्टिंग में क्या है, बहुत सारे ब्लैंक हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट टेप है, एंड आफ्टर दैट वी हैव इनफाइनाइट सेल, तो उसमें भी ब्लैंक हो सकता है। तो हम जैसे ही फर्स्ट ए को रीड करेंगे और मशीन विल रीड द फर्स्ट कैरेक्टर, देन व्हाट इट विल हैपन, ए विल बी रिटन विथ अनदर सिंबल, यहाँ पे हम एक्स से राइट कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू हियर, लॉजिक क्या होगा कि सारे ए को हमें इक्वलाइज करना है सारे बी से। तो फर्स्ट ए को हमने रीड किया, इसका मतलब मशीन का टारगेट क्या होगा कि सिंगल ए के लिए सिंगल बी भी फाइंड आउट करना। उसके बाद फिर से सेकंड ए के पास आएगा, देखा सेकंड ए अवेलेबल है क्या, यदि अवेलेबल होगा तो सेकंड बी भी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद यदि और भी ए है तो फिर से लेफ्ट में आएगा और अनदर ए को स्कैन करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल बी सर्चिंग फॉर नेक्स्ट बी, सो मूवमेंट विल बी चेंज इनटू द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ए को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया, एंड जो भी ए आएगा उसको हमने स्किप किया है, और जैसे ही बी मिला तो बी मिलते ही क्या हुआ, इसको हमने वाई से रिप्लेस कर दिया, एंड मूवमेंट फिर से हमने क्या किया, लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ए एंड के लिए फर्स्ट बी हमने देख लिया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अनदर ए है क्या, यदि अनदर ए है तो इसका मतलब मूवमेंट हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, सो डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज। तो जैसे लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा एंड फर्स्ट ए को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया है,
तो अब हम लोग उस एक्स तक पहुंचेंगे, जैसे एक्स मिलेगा उसके बाद फिर से मूवमेंट क्या होगा, चेंज होगा, मतलब राइट डायरेक्शन फिर से होगा। सो अनदर ए इज गोइंग टू बी रीड। तो यहाँ पे ए को जैसे ही रीड करेंगे तो ए को भी क्या करेंगे, राइट करेंगे एक्स से, इसका मतलब 2a हैज बीन रीड आउट। तो सारे ए फिर से मूवमेंट क्या होगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो ए को हम लोग स्किप करेंगे, वाई को भी स्किप करेंगे क्योंकि हमें बी के लिए देखना है। तो बी को फिर से किससे करेंगे रिप्लेस, वाई से राइट करेंगे। तो 2x एंड 2y उसी तरह से हम लोग लेफ्ट में जाएंगे फिर राइट में जाएंगे, एंड ब्लैंक सिंबल जैसे मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि ट्यूरिंग मशीन पॉसिबल है। तो इस लॉजिक पे ये डायग्राम को बनाया गया है। तो आप इसको स्नैपशॉट ले लें और ध्यान से देखें कि क्या होगा, राइट। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। In same fashion you can design a to the power n, b to the power n and c to the power n. So ये हमने देखा है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं, पीडीएफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन पॉसिबल है। दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू दैट जो रेगुलर लैंग्वेज होगा वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगा, और जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो ट्यूरिंग रिकर्सिव लैंग्वेज होगा। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में और ट्यूरिंग मशीन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस उसमें भी क्या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में भी क्या होता है कि लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, आप राइट कर सकते हो, लेकिन जो टेप की साइज है वो इनफाइनाइट नहीं होती है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप हमेशा याद रखना पड़ेगा ट्यूरिंग मशीन के केस में। आप जब भी किसी प्रॉब्लम को शो करना है कि ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा या नहीं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हॉल्टिंग का। यदि फाइनल स्टेट पे हॉल्ट कर रहा है सारे कैरेक्टर को स्कैन करने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकुलर स्ट्रिंग को ट्यूरिंग मशीन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, करेक्ट। यदि हॉल्ट नहीं हो रहा है फाइनल स्टेट पे, इसका मतलब क्या है, जो मशीन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, या तो कहीं दूसरे स्टेट पे क्या होगा, लूपिंग में होगा, दैट इज स्टिल फाइंडिंग फॉर द सॉल्यूशन। तो सच काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी क्रिएटेड। इस टाइप में क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं कि यहाँ पे कुछ आपको सिंबल दिए जाएंगे कैरेक्टर, और क्यू नॉट स्टेट से आप आगे बढ़ रहे हो तो इस टाइप क्वेश्चन में ये बताना कि क्या ये फाइनल स्टेट पे जाएगा, क्या एक्सेप्ट होगा। तो इसका भी आप स्नैपशॉट ले, दिस इज वेरी इजी, तो आप इसको देख सकते हैं। आई एम स्किपिंग दिस पार्ट एज वेल। या हॉल्टिंग की हमने बात किया था कि या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। यदि फाइनल स्टेट पे हम लोग पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पे भी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, रिकर्सिव लैंग्वेजेस एंड नॉन रिकर्सिव लैंग्वेज। या तो हम बात कर रहे हैं टाइप 0 ग्रामर की, जहाँ पे हम लोग रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इनुमरेबल की बात करेंगे। तो रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इनुमरेबल में डिफरेंस आप समझने की कोशिश करना। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जो भी रिकर्सिव लैंग्वेज होगा वो रिकर्सिव इनुमरेबल होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब रिकर्सिव लैंग्वेज हम कैसे समझेंगे, जब किसी भी पार्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए यदि मशीन होल्ड कर रहा है फाइनल स्टेट पे, और मशीन इज एबल टू से यस आई एम होल्ड, राइट, या फिर ये भी बता रहा है कि नहीं, यस और नो में मतलब जवाब दे पा रहा है कि यदि एक्सेप्ट हो रहा है तो यस बोलेगा, मतलब होल्ड हुआ, यदि एक्सेप्ट नहीं हुआ तो नो बोलेगा, मतलब जरूर रिप्लाई आएगा मशीन से। तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि उस टाइप के सारे लैंग्वेजेस रिकर्सिव लैंग्वेज होते हैं। लेकिन रिकर्सिव इनुमरेबल का क्या मतलब है, यस पार्ट के लिए कमेंट करेगा कि एक्सेप्ट कर लिया गया, होल्ड है, लेकिन नो पार्ट के लिए मशीन कुछ नहीं बताएगा, मतलब वो इनफाइनाइट लूप में होगा, स्टिल लुकिंग फॉर सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट को। सो वंस अगेन लेट मी रीड द पॉइंट। Remember that there are 3 possible outcomes of executing a Turing machine over a given input. The Turing machine may halt and accept the input, may halt and reject the input, और never halt। जैसा कि आपको हमने बताया, yes भी बोलेगा जब ये एक्सेप्ट कर लिया, halt हो गया, और no भी बोलेगा कि मतलब halt हुआ और रिजेक्ट कर, मतलब yes और no में जब भी आपको आंसर मिले तो रिकर्सिव लैंग्वेज होगा। यहाँ पे हमने उसका डेफिनेशन भी लिखा है, लैंग्वेज इज रिकर्सिव इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट्स एवरी स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड रिजेक्ट एवरी स्ट्रिंग इफ अ लैंग्वेज इज रिकर्सिव। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी रिकर्सिव लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, रिकर्सिव होता है। अब यहाँ पे हमने पूछा भी है कि व्हाई। दिस पॉइंट आई हैव टेकन फ्रॉम वेब, सो आई हैव नॉट रिटन द लिंक हियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यस एंड नो की बात हो रही है,
तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यस विल बी कन्वर्टेड इनटू नो एंड नो विल बी कन्वर्टेड इनटू यस, तो वंस अगेन नो यस। तो यही रीजन है कि रिकर्सिव लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, रिकर्सिव होगा। एंड यहाँ पे रिकर्सिव इनुमरेबल की बात कर रहे थे। लैंग्वेज इज रिकर्सिवली इनुमरेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड डजंट एक्सेप्ट स्ट्रिंग दैट आर नॉट इन द लैंग्वेज। मतलब वो उसको पता ही नहीं है कि क्या है, उसके लिए आंसर देना या नहीं देना है। एंड दिस इज इवेंट डायग्राम, जहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि रिकर्सिव लैंग्वेज यदि है तो रिकर्सिव इनुमरेबल तो होगा ही होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हाँ, यहाँ पे इस स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से, जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या ये इंटरसेक्शन के लिए रिकर्सिव इनुमरेबल क्लोज्ड है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है, आप इसको याद रखेंगे। रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज बोलते हैं। और रिकर्सिव लैंग्वेज को क्या बोलेंगे, ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज। एक डिसाइडेबल एंड अनदर इज रिकॉग्नाइजेबल। रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज जो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन के अंडर में क्लोज्ड होता है, इंटरसेक्शन के अंडर में नहीं होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट के अंडर में नहीं होता है, राइट, याद रखिएगा। यूनियन एंड इंटरसेक्शन में क्लोज्ड होगा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। बट रिकर्सिव लैंग्वेज की हम यदि बात करें और डिसाइडेबल लैंग्वेज की बात करें तो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉन्कैटिनेशन और कॉम्प्लीमेंट क्लोजर सारे में क्लोज्ड होता है। तो इसको आप थ्योरेटिकली आप इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाने की काफी ज्यादा चांसेस है, बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शंस भी लिया है कि कुछ व्हाई ट्यूरिंग मशीन इज मच पावरफुल देन अदर। तो हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द फंक्शन वैल्यू बाय 1, राइट। तो हमने इनपुट कुछ लिया, जैसे बाइनरी सिंबल लिया 1 0 0 0, तो हम लोग इसके लिए ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं। मतलब हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप यदि प्रोग्राम कर पा रहे हो इसका मतलब ट्यूरिंग मशीन भी पॉसिबल है। ट्यूरिंग मशीन यदि बना पा रहे तो उसका प्रोग्राम भी बना सकते हैं कंप्यूटर मशीन पे। तो जैसे यहाँ पे हमने बाइनरी इनपुट दिया 1 0 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1 0 0 1, राइट। तो इस टाइप से आप यहाँ पे हमने मशीन भी बना रखा है, तो इसको आप स्नैपशॉट ले लें और चेक करें। यदि 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है बाइनरी सिंबल का तो ट्यूरिंग मशीन पॉसिबल है। ट्यूरिंग मशीन विल solve such kind of function as well. एंड मल्टीप्लीकेशन, यदि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो भी पॉसिबल है ट्यूरिंग मशीन में। तो यहाँ पे लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम की भी बात हमने किया था स्टार्टिंग में कि जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को हमने 3 पार्ट में डिसाइड किया था, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम भी था। सो क्वेश्चन इज, ये भी गेट प्रॉब्लम दिया गया है जी। Nobody knows it if p equal to np. Consider the language L defined as follows. L is equal to 0 plus 1 to whole star if and only if p equal to np. यदि ऐसा आपको पता चल जाए कि p और np इक्वल है तो L क्या होगा, 0 plus 1 का होल स्टार होगा, अदरवाइज 5. Which of the following statement is true? First option is L is recursive. L is recursively enumerable but not recursive. C, L is not recursive enumerable. And D, whether L is recursive or not will be known after we find out if P equal to NP. So this kind of question will be asked, right? तो यहाँ पे क्या दिया गया कि nobody knows it if P equal to NP, कि P प्रॉब्लम और NP प्रॉब्लम जो है वो इक्वल है क्या। यहाँ पे बस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ऐसा कंसिडर करना है और कंडीशन दिया गया है लैंग्वेज L के लिए कि P और NP यदि इक्वल है तो उस टाइप का लैंग्वेज होगा। तो आप ध्यान दें कि 0 plus 1 का होल स्टार, तो इसके लिए तो हम लोग DFA भी बना सकते हैं। जब ये DFA है इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री भी हम लोग बना सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। और जब भी DFA है, CFL है, तो इसका मतलब क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेज तो होगा ही होगा। सो L इज रिकर्सिव, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है, L इज रिकर्सिवली इनुमरेबल बट नॉट रिकर्सिव, तो यहाँ पे नॉट रिकर्सिव बोल दिया। जब ये रिकर्सिव है तो रिकर्सिव इनुमरेबल तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट रिकर्सिव है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। एंड L इज नॉट रिकर्सिव, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब ये रिकर्सिव है तो रिकर्सिव इनुमरेबल तो होगा ही होगा। विदर L इज रिकर्सिव और नॉट, तो ये भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। अनदर क्वेश्चन जो कि आपको हमने अभी बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। लेट L1 be a recursive language, L2 and L3 be languages that are recursively enumerable but not recursive.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। L1 के लिए कमेंट किया कि रिकर्सिव लैंग्वेज है और मतलब माना है, उसने सपोज किया है। एंड L2 एंड L3 को क्या माना है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल है बट रिकर्सिव नहीं है। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन। L2 डिफरेंस L1 इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। इसमें ऑप्शन क्या हमें पिक करना है कि नॉट नेसेसरी ट्रू। तो हम लोग पहले इंटरसेक्शन एंड यूनियन का देखें, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। L2 इंटरसेक्शन L1 इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। हम 15 सेकंड का टाइम देंगे कि आप इसका आंसर करें। ओके, मुकुल वर आस्किंग दैट सर रिपीट। सॉरी मुकुल, मैं आगे बढ़ चुका हूं। इसका आंसर करें। नो आंसर। ओके चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए इसको, आपको ये पता होना चाहिए कि जब L1 रिकर्सिव लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होगा। L2 एंड L3 क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल दिया गया बट वो रिकर्सिव नहीं है। चलो, तो L2 इंटरसेक्शन L1 इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। इसका मतलब क्या है, जब L2 भी क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, L1 रिकर्सिव, इसका मतलब इन्यूमरेबल भी होगा। और आपको हमने अभी बताया है कि क्लोज्ड होता है इंटरसेक्शन के अंदर में, तो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी की बात करें, L2 यूनियन L1, यूनियन में भी सेम सिचुएशन, यूनियन भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। अब हम लोग देखें ऑप्शन ए एंड बी में। L2 डिफरेंस L1 इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। L2 क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। L1 क्या है, रिकर्सिव है। यदि हम किसी रिकर्सिव इन्यूमरेबल में से डिफरेंस क्या कर रहे हैं, रिकर्सिव को, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या होगा, सो ऑफ कोर्स दैट विल बी रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। बट यदि कोई भी लैंग्वेज, यहाँ पे L1 क्या बोल दिया कि रिकर्सिव लैंग्वेज है और उसमें हम सब्ट्रैक्ट डिफरेंस क्या कर रहे हैं, L3 को, जो कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल है और रिकर्सिव नहीं है, हमें पता नहीं है उसके बारे में भी, फिक्स नहीं है, तो उसका जो डिफरेंस होगा, रिजल्टिंग रिजल्ट होगा, क्या होगा। So I think option B, let me check the answer as well. The option B is correct. So in this way you can give the answer, right? Do we have another problem? Yes, we have another problem, right? चलो, ये भी गेट प्रॉब्लम है, इसको भी आप ट्राई करें। So I am giving you 15 seconds of time. So which of the following statement is are false? For every non-deterministic Turing machine, there exists an equivalent deterministic Turing recognizable language are closed under union and complementation. Turing decidable, या आपको हमने पहले बताया है कि recognizable का क्या मीनिंग है, decidable का क्या मीनिंग है। तो ये जवाब दें। Let me check anyone has answered or not. Ankita Prajapati is saying no, 2 minutes. Anybody? आदित्य मुकुल is saying option D. चलो, यहाँ पे क्या है, डी में क्या है, 3, तो ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज आर क्लोज अंडर इंटरसेक्शन, एंड इसमें फॉल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, रिकॉग्नाइजेबल है, इसका मतलब क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल की बात कर रहे हैं। डिसाइडेबल है, इसका मतलब रिकर्सिव लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। चलो, पहला ऑप्शन जो है, फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक, बिल्कुल, क्योंकि पावर में सेम होता है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी डेवलप किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है भाई। सेकंड ऑप्शन क्या है, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेज आर क्लोज्ड, मतलब रिकर्सिव इन्यूमरेबल की बात हो रही है, यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होता है। आपको मैंने अभी बताया था कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन के यदि हम बात करें उसके अंदर में क्लोज्ड है, बट कॉम्प्लीमेंट के अंदर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपको रीजन में बताया था। रिकर्सिव में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकर्सिव है, इसका मतलब क्या है, यस एंड नो के लिए जरूर बोलेगा मशीन, तो जब यस का हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो नो होगा, और नो का करेंगे तो यस होगा। बट रिकर्सिव इन्यूमरेबल में क्या होता है, यस तो आपको पता है, मशीन इज रिप्लाइंग विथ यस, बट देयर इज नो एनी कमेंट फॉर अनदर पार्ट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल ही यस का तो नो कर देगा, यस का तो नो करेगा, जिसको पता ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता उसका, याद रखिएगा इस तरीके से। तो टू क्या है, रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर यूनियन बट नॉट
under complement. So option 2 is false. Turing decidable language are closed under बिल्कुल सही है. Turing recognizable language are closed under union and intersection. हाँ ये भी सही है. तो option C will be correct. Anyone has written the answer? No. Yeah. So this was the last question of theory of computation course. I hope you get benefited by this lecture, and we will meet in another lecture. So that will be decided by management, and I will be teaching compiler design as well, and that is another very scoring subject for GATE examination. Correct. If you are good in theory of computation, it means that you are going to solve most of the problem of theory of computation. And compiler design में थोड़ा भी आप मेहनत करें तो you will become expert of compiler design. And जिसको थोड़ा भी doubt होता है theory of computation में, then they will not able to solve theory of computation problem as well as compiler design problem. Correct. So we will meet in next class, and I will request you all that ask your problem, and जहाँ भी आपको doubt है, किसी particular portion में doubt है, then वहाँ पे भी आप बता सकते हैं. We are very happy to reply your questions, right? So